نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، امیر کس کے لیے بننا بہتر ہے اسے امیر بنایا، غربت کس کے لیے بہتر ہے اسے غریب بنایا، کس کے لیے جو بہتر ہے اللہ نے وہی عطا کر دیا۔ ہم تو ایک سانس کے محتاج، پانی کے ایک قطرہ کے محتاج، دانا ایک ایک دانا کے محتاج، تو ہم کیوں سوچتے ہیں یہ ہوتا تو اچھا ہوتا؟ یہ کہہ کے خاموش ہو جائیے، مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ سبحان اللہ۔ ہم ہاتھ ایک کس کہنے کے بھی لائق نہیں، ہم چوچرا نہیں کہہ سکتے۔ آج کا آدمی، یہ لڑکیاں جس کی بیٹیاں اچھی ہیں اللہ کو سلامت رکھے، ورنہ لڑکیوں کا مزاج خراب ہو گیا، سوچتے ہم لڑکا ہوتے تو اچھا ہوتا۔ جب ہی تو لڑکوں کا کپڑا پہن لیا، جنس پہن لیا، شرٹ پہن لیا، ڈرائیونگ چالو کر دیا، یہ لڑکیاں ہیں۔ اب کچھ مسلمان لڑکے سوچتے ہیں میں لڑکی ہوتا تو اچھا ہوتا، جب ہی تو کان چھدوا لیا۔ نیت میں فطور ہے نا بھائی، کان چھدوایا، کبھی ناک چھدوائے گا، کبھی کچھ چھدوائے گا۔ ارے کمینہ، ارے تم مسلمان ہے، یہ سب کیا خیال رکھتا ہے؟ کان چھدوانے سے لڑکا اچھا نہیں ہوگا، کان چھدوانے سے لڑکے کے حسن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کان چھدوائے ہمارے گھر کی عورتیں، ان کے کانوں میں زیور ہو، اس کے حسن میں نکھار پیدا ہوگا۔ تم کان چھدوا کر کے خوبصورت نہیں بن سکتے ہو، دنیا داروں کی نقل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، نبی کی سنت سے پیار کرو گے تو آباد ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے اوقات کو مت دیکھو، یہ بیچارہ شروع میں ساؤنڈ بہت اچھا رکھا تھا، سوچا تھا غریب مولوی ہے، اور جب میرے پیر کا کرم دیکھا، میری آواز بڑی، اس نے گھما دیا۔ میرے دوست ساؤنڈ بڑھا کے رکھو، اور جہاں تک سیٹی نہ مارے وہیں تک رکھ دو، اور اس کے بعد تم سو جاؤ۔ ہاں، نماز پڑھے گی، گھٹے گی۔ اچھا مائک رہے نہ رہے، ہم لوگ تو ماشاءاللہ اگر مائک کے بھی میلاد کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو چپے 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 محنت پڑ رہی ہے آپ لوگوں کو، میں خود بولنے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ لوگ آرام کیجئے، آرام کیجئے، بس قبر میں جائیے گا، جب منکر نکیر کا سامنا ہوگا، سوالات ہوں گے، قبر کی تاریکی ہوگی، نہ باپ رہے گا نہ ماں رہے گی، نہ کوئی رشتہ دار، تنہا تنہا تنہا۔ تنہائی کس کو کہتے ہیں؟ جب جب پیدا ہوئے مرنے سے پہلے جب آپ نے تنہائی کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے، آج پہلی رات قبر کی ہے، تنہائی کی پہلی رات ہے، اب سمجھ آئے گا تنہائی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی، جس نے اپنے رب کی اطاعت کیا ہوگا وہ قبر میں بھی رہے گا مسکرا کر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں کر رہے آپ لوگ، چپ رہیے، میں خود سبحان اللہ کہہ لے رہا ہوں، اور اگر اس کا معنی سمجھ رہے ہیں تو اچھا چلیے رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جسے چاہا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب ہم لوگ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے ہی بنایا سب کو، ایمان ہے نا بھائی؟ جب ایمان ہے تو اب ہمیں پرابلم کیوں؟ کسی کی ترقی سے ہمیں سمسیا کیوں؟ کسی کے کمال سے ہمیں پریشانی کیوں؟ کسی کے جمال سے ہمیں پرابلم کیوں؟ کسی کی شہرت سے ہمیں ٹینشن کیوں؟ اللہ نے جسے چاہا نواز دیا۔ یہ ہم اور آپ ہیں، حسد میں پلنے والے لوگ، انصاف کیجئے اپنے آپ سے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا تھا، جھوپڑی تھی، جاڑا ہو یا گرمی اسی میں گزر بسر ہو، برسات میں چھٹ پکتی رہی، اپنے بال بچوں کو لے کے ساتھ میں سو کے نہیں بیٹھ کے رات کو گزار دیا۔ آپ کے پڑوس میں تھا، کبھی آپ نے خبر نہیں لیا، کبھی آپ نے خبر نہیں لیا، لیکن اللہ نے اس کو نواز دیا، اب اس کا مکان بن گیا۔ تو یہ پڑوس میں رہنے والا اپنے CBI کا بچہ ہوتا ہے اور کہتا ہے لایا کہاں سے؟ کل تک بھوکا سو رہا تھا، کبھی
نہیں کیا. آج وہی غریب امیر ہو گیا خوشحال. تو یہی پڑوسی کہہ رہا ہے لایا کہاں سے, لایا کہاں سے. اگر مسجد کا امام اچھا قیمتی کپڑا پہن لے, پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی کہتا ہے لایا کہاں سے. اگر مؤذن اگر ایڈونچر گاڑی خرید لے, وہی آدمی کہے گا لایا کہاں سے. مدرسے کا مدرس اگر ترقی کر لے تو یہی کہے گا تنخواہ ہے 8,000, لایا کہاں سے. ارے میرے بھائی تمہارا کام یہ نہیں ہے لایا کہاں سے یہ کہہ کے خوش ہو جاؤ اللہ تیرا شکر ہے میرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے, میرا بھائی ترقی کر رہا ہے, میرا بھائی خوشحال ہو رہا ہے, مولا اسے بھی نواز دے, مجھے بھی نواز دے. سبحان اللہ. آپ کے حسد سے اس کا کچھ بگڑے گا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا وہ میں بتا دوں گا حدیث کے روشنی میں, لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. بھول ہی جائیے, فری میں کہاں میں بتاؤں گا. حشر میں یاد کیجئے گا حضرت اس دن جو آپ بولے تھے کہ فری میں نہیں بتاؤں گا, اور ہم لوگ سبحان اللہ بولتے رہے, حضرت وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, آج سمجھ میں آ رہا ہے اس کا بینیفٹ کتنا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے پرہیزگار, وہ لوگ یہاں پہ نہیں بول رہے, لیکن جب پنچایت میں دیکھی اس گنڈا کو تباہی مچا جاتا, مگر مائک کے اتنا ہیوی چلائے گا, سمجھ گئے, اتنا بولے گا, اور جلسہ میں چپ, بالکل چپ, جبکہ ان کو چاہیے کہ اور اللہ کا نام لیں. پوچھے کیوں, بوڑھوں کو کیوں, اس لیے ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں, دوبارہ جوان نہیں ہوں گے, اور جوان یہ نہ سوچے بھی میں جوان ہوں, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے. سبحان اللہ. حسد کرنے والوں توبہ کر لو, آپ کے حسد سے اگلے کا کچھ نہیں بگڑے گا, تمہارا نقصان کیا ہوگا. نبی فرماتے ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے, ویسے حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, اور آپ چلتے رہتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں, تباہ رہتے ہیں. حاسد کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا, حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے, اور جس کو اللہ نے نوازا دولت سے, شہرت سے, عزت سے, اولاد سے, علم سے, عمل سے, تو وہ غرور نہ کرے, وہ گھمنڈ نہ کرے. جتنا بھی عروج مل جائے, شاعر ہو, خطیب ہو, معلم ہو, پیسہ والا ہو, جائیداد والا, وہ گھمنڈ نہ کرے, وہ غرور نہ کرے. کیوں؟ اللہ کو ناپسند. وہ جس وقت چاہے بیمار کر دے, جس وقت چاہے شفا عطا فرما دے. ہم کیوں غرور کریں, ہم کیوں گھمنڈ کریں. لیکن افسوس کی بات ہے آج کا ماحول, اگر کسی گاؤں میں مسجد بنی تو کسی نے پوچھ دیا مسجد کیسے بنی, تو سیکریٹری ہو یا صدر یا گاؤں کا کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے سنیے سوال آپ کر رہے ہیں, میں نے بنایا, میں نے. اچھا یہ گھر کیسے بن گیا آپ کا, میں نے بنایا, رات کی دیکھ کر کے بنایا. اچھا آپ کا بیٹا سنا اور انجینئر ہو گیا, ہاں جی پیسہ لٹایا ہوں, پیسہ میں نے. ارے شادی ہو گئی, میں نے. یہ میں, جبکہ میں کا استعمال زیادہ تر بکریاں کرتا ہے, ہر گھڑی میں, اور انسانوں میں کا استعمال فرعون نے کیا, میں کا استعمال فرعون نے کیا, اور اتنا کیا کہ خدائی دعویٰ کر دیا. ارے ہم تو آزاد امیدوار نہیں ہے, ہم دلدلی امیدوار کی طرح نہیں ہے, ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم کیوں کہیں گے یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا. کبھی کوئی پوچھے مسجد کیسے بنی, مت کہیے میں نے کیا. مدرسہ کیسے بنا, مت کہیے میں نے بنایا. اگر کوئی پوچھے یہ مسجد کیسے بنی تو کہہ دیجئے هذا من فضل ربی. یہ مدرسہ کیسے بنا, هذا من فضل ربی.
मस्जिद बनी मेरा कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल। सुभान अल्लाह। मदरसा बना ये कमेटी वालों का कमाल नहीं, मेहनत है, असल कमाल खुदा के फजल का। मदरसा में बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा। कुछ बच्चे होते हैं 6 महीना पढ़ा भाग गया, कुछ बच्चे होते हैं 7 महीना पढ़ा भाग गया, और उसको दिल नहीं लगता है या नीयत ठीक नहीं रहती है, तो बच्चे क्या कहते हैं जानते हैं? एक दादी को 4-5 मरतबा मार देता है। नहीं समझे हजरत? क्या बात, मेरी दादी का इंतकाल हो गया, छुट्टी। फिर दूसरे मदरसा में गया, फिर दिल नहीं लगा, हजरत दादी मर गई। यानी 7-8 मरतबा एक ही दादी को मारता है। कभी कभी बाप को भी मार देता है। इधर उधर होता रहता है, होता रहता है। और उसी में देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गए वो आलिम बन के लौटे, हाफिज बन के लौटे। मतलब क्या? ये भी गया पढ़ने, वो भी गया पढ़ने, ये नाकाम होगा, वो कामयाब हो गया। तो कभी भी मुसलमान या आलिम ये न कहे मैंने नहीं, रुका दो। जो खुदा के फजल से महरूम रहा वो इधर आ गया, जो खुदा के फजल से माला माल हुआ वो आलिम दीन हो गया। कभी भी गुरूर मत कीजिएगा, कभी भी घमंड मत कीजिएगा। आप मुझे देख रहे हैं, मेरा सीना कितना चौड़ा है, इसमें फेफड़ा कितना बड़ा होगा, कलेजी कितनी बड़ी, ये देख रहे हैं आप। लेकिन आवाज देखिए, ये सिंकारा पी के नहीं आया हो, ये टैबलेट खा के नहीं आया हो, ये कोई विटामिन खा के नहीं आया हो, ये मेरा फेफड़ा नहीं, मेरे जिगर का कमाल नहीं, असली ये है खुदा के फजल का कमाल है। ये खुदा के फजल का कमाल है, और सारा कमाल फजल खुदा में है। इसलिए दोस्तों, कभी जिसको अल्लाह नवाज दे वो गुरूर न करे, और जो महरूम है या जो चाहता है वो न मिले तो कभी हसद न करे। अमीर हो या गरीब, बस ये कह के खामोश हो जाए, मौला जिसमें तू राजी उसमें हम। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? आ रही है समझ में? अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं ट्रैक चेंज कर दूं। बात समझ में आ रही है? आधा घंटा से ज्यादा हो गया है, अब मैं चाहता हूँ आगे बढ़ो, लेकिन फ्री में नहीं बढ़ूंगा। आप लोग आराम फरमाए, बस आप लोग बिल्कुल आराम करें। ना 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 ना, इतना टाइम कहाँ है तेल मसाला खर्च करें। एक मरतबा दावत दे दिया तो बोल लेना चाहिए। कुर्सी पे बैठे तो क्या हुआ, जरा लेजर टाइट भी हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं दावत मोहब्बत दे रहा हूँ। दावत हजरत आप लोग क्या है, ये लोग क्या है, हम मौलाना हजरत क्या है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कसम मैदान महशर में अंबिया और मुरसलीन रोते होंगे, अंबिया और मुरसलीन रोते होंगे। हम लोग की क्या गिनती, हम लोग के पास वक्त है, मौका है, मरने से पहले खुदा को राजी कर ले। जरा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्हों का हाथ उठ गया सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको किडनी की बीमारी से बचा, सबको दिल के मर्ज से बचा, और या अल्लाह सबको एक्सीडेंट होने से बचा। दुआ ठीक हो रही है? दुआ वापस कर लो। या अल्लाह सबको वहाबी से बचा, या अल्लाह सबको सुलगुल्ली से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न हो जाएगी। ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। हम लोग क्या क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में बताऊं। मैं 2020 में बिहार विधानसभा में मैंने विधायक फाइट किया था, लड़ रहा था इलेक्शन। लोग सोचते हैं मौलवी साहब आजाद ही देगा, मौलवी साहब विधायक नहीं बन सकता, मौलवी साहब एमपी नहीं बन सकता। लेकिन आप लोग का मिजाज ये है, नहीं मौलवी साहब आजाद दो और यही करो, एमपी हम बने, ये मेरे हक बने, तुम मुझे सलाम करो। वाह, जब के हाल ये है, पढ़ा लिखा साढ़े भाई है, जिसको बोलना आता है, जिसके हाथ में कलम है, उसे वोट डाले। और आपके पास पैसा है और पढ़े लिखे साढ़े भाई, आप ही विधायक बनिए। सबका गुरूर तोड़ने के लिए मैं खड़ा हो गया था इलेक्शन। रिजल्ट मत पूछेगा क्या हुआ, इतना आसान है जनाब। वो भी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, बहुत जरा मुश्किल है, लेकिन आंखों में आंखें डाल के बात करने का हुनर रखता हूँ। मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया भाई, मैं ये सोच रहा था यार एक बार हम जीत जाए फर्स्ट एंड लास्ट। तो
तो खाब सजा रहा था, जीत जाऊंगा ना तो गाड़ी तो रहेगी आगे पीछे पुलिस की, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा मदरसा है, लोग चंदा ही नहीं देते हैं, बस बैठे बैठे फोन करूंगा, हेलो 2-3 रूम तुम बना दो, तो हम विधायक रहेंगे, आएगा अब्बा अब्बा भी कहेगा और पैसा भी देगा, मदरसा में जाएगा, चंदा करना में भूल जाऊंगा, बहुत टेंशन होता है चंदा लेने में, मदरसा चलाता हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आउट हो गया, समझ गए, रिजल्ट आउट हो गया, तो चूंकि फैसला मेरे हक में नहीं आया, समझ गए, अब बिल्कुल नहीं समझेगा कि आपको वोट नहीं मिला, वीआईपी वोट भी मिला था, जी हाँ। खैर, तो बाद में मैंने सोचा मामला हुआ क्यों, तो पैसा भी नहीं था, वो सारा मामला है। मैंने कहा ना, जो मैंने सोचा वो गलत था, जो अल्लाह ने किया वही सही था। जोर से बोलिए, जो मैंने सोचा वो गलत था, ये पैसा होगा, ऐसे दिन का काम हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि जब पैसा आता है एहसास भी होता है, जब पैसा आता है उर्गानियत भी होती है, जब पैसा आता है हुरूर लेके आता है, जब दौलत आती है घमंड लेके आती है, जब पैसा आता है आदमी कहीं से कहीं चला जाता है, जब पैसा आता है दीनदार हो जाता है, जब पैसा आता है छोटों से प्यार नहीं करता, अक्सर ये दौलत आने के बाद होता है। मैंने खुदा की बात में अर्ज किया, मौला नहीं, जो मैं चाह रहा था वो न हुआ, वही हुआ जो तूने चाहा, मौला तेरी रज़ा में कल भी राजी था, आज भी राजी। सुभान अल्लाह। हमें क्या मालूम कि दौलत आने के बाद कोई फिरौन भी बन सकता है, दौलत आने के बाद कोई नमरूद भी बन सकता है, नहीं मौला मेरे लिए यही बेहतर है कि मेरे पास दुनिया की दौलत रहे न रहे, ईमान की दौलत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्तों हम लोग क्या जाने कि क्या होता है, ये पतला पतला आदमी सब सोचता है हम मोटे होते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन जो मोटा है जरा उससे पूछे कि क्या होता है, जरा पूछे टॉयलेट में जाता है वो क्या करता है, कैसे करता है, जरा पूछिए उससे, परेशान रहता है ना, हाँ जिसका पेट इतना निकल गया मोटा है, उसको कहिए दौड़ने के लिए, अरे वो तो कैसे जाके तवाफ करेगा मक्का शरीफ में, उसी से जाके पूछिए, एक ही मरतबा घूम के आएगा करेगा। मेरे जैसा पतला दुबला आदमी अल्हम्दुलिल्लाह 7 मरतबा तवाफ करता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप क्या जानते हैं, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है उसका शुक्र अदा करें, कभी गुरूर न करे, कभी घमंड न करे, ये सारा कमाल अल्लाह के फज़ल का है। और तो में इस कदर ये बीमारी है कि पनाह खुदा, और तो आजकल जो शादियों में बच्चियां जाती हैं, औरतें जाती हैं, तो खाना कम, एक औरत दूसरे औरत को देखेगी, क्या देखेगी, उसका सूट कैसा है, उसका जेवर कैसा है, उसके मलबूसात कैसे हैं, घर आएगी अपने शावर से मुखातब, अजी इतने दिन शादी को हो गए, बीवी की मिजाज को शौहर समझ जाता है, क्या बात है तेवर बदला हुआ, बोला खाक बदला रहेगा, न तुम गई थी शादी में तो अलग मूड था, अभी आई हो क्या होगा, बतलाओ साफ साफ, बोला हाँ क्या होगा, शादी को 22 साल हो गए, हम आज गए थे फला की माँ को देखे, गले में सोने का चैन है, ये है वो है, आपने क्या ला के दिया, आपने क्या ला के दिया, अंदर अंदर सोचती है ये सारा जेवर ऑटोमेटिक मेरे गले में आता और उसका गला खाली रह गया, इसका हसद है, पूछिए मत, औरतें ही जानती है, किताबें पढ़ने के बाद कुछ मालूमात हो जाती है, लेकिन औरतों को चाहिए, औरत ऐसी है जो सोचती है अगर 4 बेटी पैदा हो गई, बेटियां 4 साल या 10 साल, अब बेटा नहीं हो रहा है, अब पड़ोसन को बेटा हो रहा है, अब उससे हल्का के पूछिए, उसका बस चले तो यहीं से बम मार दे, उसी को बेटा हो रहा, हमको कहा नहीं हो रहा, किसी किसी को अल्लाह 4-5-6 बेटे ही, बेटी नहीं, मजबूर रहता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की मर्जी है, यहाँ बोले मैं ये शाउल था, वो यहाँ बोले मैं ये शाउल को कूद, और यूसुफ ने जो मुझको आगा मैं ना था, मैं जानो मैं ये शाउल कीमा, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे
एक ही बात में सिर्फ एक यहाँ एक दुनिया की एक आखिरत की बात है, बेटी के हवाले से बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। साउंड बढ़ा लीजिए तो मैं जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है सबका बिगड़ा काम बना दे। जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है सबको मदीना दिखा दे। कहाँ चले? जिन्स वाला। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। जिंदगी को गुजारने के लिए जैसे दाना पानी का होना जरूरी है, उससे ज्यादा जिंदगी को कामयाब करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। इल्म नहीं है आंख रखते हुए अंधा, इल्म नहीं है हाथ रखते हुए लूला, इल्म नहीं है पांव रखते हुए लंगड़ा, इल्म नहीं है मुहताज है, इल्म नहीं है बोझ है आप। जिसके पास इल्म है वो कौम की जरूरत है, जिसके पास इल्म है जिंदगी कामयाब है, जिसके पास इल्म है वहां भी कामयाब। ज़रात ऐसे ही नहीं है। IPS का एग्जाम देने के बाद एग्जाम हार्ड है लेकिन रिजल्ट अगर अच्छा आ जाए तो पावर कितना है। अनपढ़ आदमी IPS नहीं हो सकता, अनपढ़ आदमी चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, अनपढ़ आदमी मुदब्बिर नहीं हो सकता, अनपढ़ आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। मर्दों से ज्यादा औरतों का पढ़ना जरूरी, इसलिए कि अगर मर्द ने पढ़ा तो एक फर्द ने पढ़ा, अगर एक औरत ने पढ़ लिया तो समझो पूरी नस्ल ने पढ़ लिया। औरतों का पढ़ना कितना जरूरी आपको क्या मालूम? मर्दों का नहाना और है, औरतों का हुस्न करना और। मर्दों के नहाने में शराइत कम है, औरतों के बाल बड़े बड़े हैं, चोटी बनी हुई है, कैसे नहाएगी? कपड़ा नापाक है, अब उस कपड़े के साथ क्या करेगी और कैसे नहाएगी? हैज का मसला क्या है, नफास का मसला क्या है, इस्तिहाजा का मसला क्या है? वो किसी से पूछ भी नहीं पाती। अपने शौहर से पूछे तो अंगूठा छाप, वो क्या बताएगा? वालिद से नहीं जाके पूछता, शर्म आती है। जबकि कुरान ने कह दिया नहीं, शर्माओ मत इल्म हासिल करने में, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो आलिमों से पूछ लो। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बहुत मारेगा। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ का पढ़ना इतना जरूरी है कि बेटी का पढ़ना। लोग कहते हैं, आपने सुना है, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह और दरसगाह वाली पहली मुअल्लिमा। अगर मुअल्लिमा अनपढ़ हो तो बच्चे का क्या हाल होगा? अगर माँ ही अगर अंगूठा छाप हो बच्चे का हाल क्या होगा? और अगर माँ इल्म वाली है, अगर माँ के पास इल्म की दौलत है तो बगैर वजू के दूध नहीं पिलाएगी। माँ के पास इल्म की दौलत है, दूध भी पिलाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, अगर अपने आगोश में लेगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, अगर अपने बच्चे की परवरिश करेगी बिस्मिल्लाह पढ़ के। चूंकि माँ आलिमा है, इल्म वाली है, बिस्मिल्लाह की बरकत जानती है। और जब बिस्मिल्लाह के साए में जो बच्चा परवान चढ़ेगा तो यकीनी बात है कि जहाँ अल्लाह का नाम होता है वहाँ शैतान की तो हुस्न नहीं होती, और यही बच्चा आगे चल के अल्लाह का महबूब बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका पढ़ना आपके यहाँ ये बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम, मौलाना अख्तर साहब, हाफिज अख्तर रजा साहब, इन्होंने बच्चियों के तालीम का के बारे में सोचा। बहुत बड़ी सोच है। अगर आपकी बेटियां अगर आलिमा हो गई तो समझ लीजिए फिर आपकी नस्ल कामयाब होगी। जरा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों का पढ़ना कितना जरूरी है आप अपनी बेगम से जाकर पूछ लीजिएगा। पूछेगा दुआएं कुनूत सुना तो
1000 में 10, 20, 50 औरतों को मालूम होगा ना? आयतुल कुर्सी तो हम याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुना, ऐसा पढ़ेगी कि आपको बुखार आ जाएगा। अक्सर बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। शौहर सुनता तो बोलता बाप रे बाप, मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है और एक आयत सही नहीं पढ़ी, एक आयत सही नहीं पढ़ी। आप खुश हैं? कुरान सही पढ़ने के लिए तजवीद का जानना जरूरी है। आपकी ये किताब नहीं है कि जैसे चाहे वैसे पढ़ ले। मैंने पहले ही कहा था, कारी वही होता है फन्ने तजवीद का जानकार जिस पे खुदा का फजल होता है, और आलिम वही होते हैं जिस पे खुदा का फजल होता है, नमाजी वही होता है जिस पे खुदा का फजल होता है, हाफिज कुरान वही होता है जिस पे खुदा का फजल होता है। वरना कौन ऐसा मुसलमान है जो नहीं चाहता है कि हम नमाज पढ़ें? सब चाहता नमाज पढ़े लेकिन पढ़ता नहीं। जिस पे खुदा का फजल होता है वही मस्जिद का नमाजी होता है। आपके इलाके में एक दौलतमंद होंगे, उनसे कहिए मदीना शरीफ जाओगे? जाऊंगा। कब जाऊंगा? कब जाऊंगा? मकान बन जाएगा तब तब, बेटी की शादी हो जाएगी तब तब, गिरिडीह में जमीन खरीदा हो मकान बन जाए तब तब, फला काम एक जगह फंसा हुआ है वो ठीक हो जाए तब तब। उसे मालूम नहीं कि ये तब कहीं इसको कब्रिस्तान में लेके जाए और हज करता ही रह जाए। मेरे भाइयों, सरकार फरमाते मन अरादल हज फलयुहज्ज। अल्लाह ने तुम्हें जब दौलत दिया है, वलिल्लाहि अल-नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तुम कर सकते हो, इरादा कर लो तो फिर देर न करो, इसलिए कि मौत आएगी, तुम न देख पाओगे। इरादा कर लिए हो तो सारा राह रहने दो, पहले नबी की बारगाह में पहुंच जाओ। जाता है बड़े बड़े पैसे वाले तो गाँव घर में रह जाते हैं जमीन खरीदने में। कभी कभी देखिएगा गरीब मदीना चला गया, ऐसा होता है कि भाई गरीब मदीना चला गया। इसकी एक वजह ये भी है, अमेरिका फराज जर्मन जाने के लिए पैसे की जरूरत है, मदीना जाने के लिए इश्क़े रसूल की जरूरत है। तो कभी दौलत मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, गुरूर नहीं कीजिए। आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, पीर साहब हो, फला साहब हो, दौलतमंद हो, खूबसूरत हो, जमाल वाला हो, कमाल वाला हो, माल वाला हो, गुरूर न कर, घमंड न कर। आलिम को और नसीब नहीं देता, आलिम को खुशहाल खुशखसाल होना जरूरी है। आलिम को अखलाक़े हसना की दौलत से माला माल होना जरूरी है, तब दीन का काम है। और अल्लाह का फजल है, जिस पे खुदा का फजल होता है उनका अखलाक बुलंद होता है। जिन पे खुदा का फजल होता है वो महबूब नजर होते हैं, मकबूल खास आम होते हैं। तो ये सारा कमाल अल्लाह के फजल है। मैं कहा तू कहा, आज मैं आपके यहाँ हाफिज अख्तर रज़ा साहब ने अच्छा रुके ना, हाफिज अख्तर साहब ने दावत दिया, मैं आ गया। ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह भी वही बोलता है जिस पे खुदा का फजल होता है। सुभान अल्लाह। हजरात, कोई मदीना गया, ये खुदा का फजल है। अब बात समझ में आ गई होगी, ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। बात समझ में आ गई ना? तो गुरूर कभी न कीजिएगा, घमंड कभी न कीजिएगा, हसद कभी न कीजिएगा। हजरात, तो ये अल्लाह का फजल है कहाँ? ये अल्लाह का फजल है कहाँ? हम क्यों किसी की तरक्की को देख करके चले? हमें भी चाहिए, कुरान से पूछे, कुरान हम भी चाहते हैं कि अल्लाह मुझे ये दे दे वो दे दे। तो कुरान कहता है वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, तुम अल्लाह से फजल को मांगो, अल्लाह से फजल का सवाल करो। लेकिन हम लोग दुआ करने का भी ढंग हमें और आपको नहीं मालूम। मैं साबित करूंगा, जुमा का दिन होता है, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जब लोग हाथ उठाते दुआ के लिए, तब एक से एक मंजर नजर आता है। लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं, देखिएगा कैसे
کوئی ہاتھ ایسے کیے رہے گا، کوئی ہاتھ ایسے کیے رہے گا اور دعا مانگتا رہتا ہے، صحیح بول رہا ہوں؟ کوئی ایسے ایسے کرتا رہے گا اور آمین آمین کہتا رہے گا تاکہ سمجھ جائے کہ دعا میں شامل ہے، صحیح بول رہا کہ بھائی؟ کسی کو دیکھیے گا انگلیوں کو بجاتا رہے گا، آمین آمین کہتا رہے گا، کسی کو دیکھے گا ایک ہاتھ ایسے کیے رہے گا، دعا مانگتا رہے گا، کھجلی ہوگی ایک ہاتھ ایسے رکھے گا، دوسرا آمین، دونوں کام ایک ساتھ کرے گا۔ کسی کو دیکھیے گا دعا مانگ رہا ہے، آپ دوسرے سے کہے یار لگ رہا گاڑی چھوٹ جائے گی، بہت لیٹ ہو رہا، آمین، یعنی دعا میں شامل ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، آمین۔ کسی کو دیکھے گا بس دیوار کو گھومتا رہے گا، ہاتھ مانگتا رہے گا، آمین، تاکہ لوگ سمجھے دعا مانگ رہا ہے۔ سب مسجد میں دیکھیے گا جب دعا ختم ہوتی ہے کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑتا ہے، اتنے اسپیڈ میں بھاگتا ہے کہ کبھی کبھی دائیں پاؤں میں امام کی چپل، بائیں پاؤں میں مؤذن کی چپل، جلد بازی میں اس قدر بھاگتا ہے۔ درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت ہے ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھ جائیے۔ یا اللہ کا شکر ہے آپ تمامی حضرات جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے مانگو، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، ہاتھ ملتے رہتے ہیں، آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ ان اداؤں کے ساتھ کوئی ماں کا بیٹا اگر اپنی ماں کے پاس جا کے مانگے، ماں ادھر کھڑی ہو، بیٹے کا رخ ادھر ہو اور کہہ دے ماں مجھے دو، تو ماں کیا کہے گی؟ بدتمیز ہے۔ باپ ادھر ہو، بیٹا کسی طرف منہ کر کے باپ باپ کہتا رہے، باپ کہے گا بدتمیز ہے۔ ارے ماں باپ کو یہ ادا جب پسند نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہو اور اس طرح مانگ رہے ہو، یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح مانگ رہے ہو، ہاتھ مل رہے ہو، توجہ کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، تفکرات کہیں اور ہے، اور اپنے رب سے اس طرح مانگ رہے ہو، ہاتھ مل مل کے مانگ رہے ہو۔ ارے تجھے نہیں معلوم وہ رب ہے، اس رب میں کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب حضرت آدم روتے ہیں رب کی بارگاہ میں 300 سال تک روتے ہیں، کون ایسے پیغمبر ہے جو رب کی بارگاہ میں روتے نہیں ہے؟ تمام انبیاء مرسلین رو رو کے مانگتے ہیں، رو رو کے حاضری دیتے ہیں۔ ارے میرے سرکار جب رونے پہ آتے ہیں تو اس قدر آنسو بہاتے ہیں کہ بریلی کے تاجدار کا قلم حرکت کرتا ہے، اور رونے میں جب منظر کشی کرتا ہے تو لکھتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا اپنی بارگاہ میں نبی روتے ہیں، رسول روتے ہیں، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتا دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب رب سے مانگو تو رو رو کے مانگو، جب سب سے مانگو تو گر گرا کے مانگو۔ ہم بے حیا کی طرح مانگتے ہیں، کیوں؟ علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ لوگ میٹرک میں ہی سمجھتے ہیں میں بہت کامیاب ہوں، میرے پاس بھی اسکول سے 8ویں کی ڈگری ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کوئی میٹرک کر کے کامیاب ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ حضرات دو پیاسے کبھی نہیں بجھیں گی، دو پیاسے فری میں نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ، اور ساؤنڈ بڑھا لیجیے زور سے۔ سبحان اللہ، ایک دولت کی پیاس، ایک علم کی پیاس، یہ دونوں پیاسیں کبھی نہیں بجھیں گی، چاہے کروڑ آ جائے چاہے 1 ارب آ جائے۔ میں اپنی بات بتاؤں اور لوگوں کی بات رہنے دیجیے۔ جب میں تقریری سفر شروع کیا تو 50 روپیہ ملتا تھا، سوچتا تھا 100 ملتا تو اچھا ہوتا۔ حضرت ترقی ہوئی تو 500 ملنے لگا، میں نے کہا ہاں 1000 ملتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ جب 1000 ملنے لگا، دیکھیں نا کتنا نفس موٹا ہو رہا، 5000 ملتا تو اچھا ہوتا۔ جب 5000 آیا تو کلیجے لگا 22 ہاتھ کا لے گنتی، یہ سلسلہ کچھ دن چلا، اب آیا خیال 10,000 ملتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ جب 10,000 آنے لگا نا، آپ چسکا بڑھا، 15,000 آتا تو بڑا اچھا لگتا۔ اب 15,000 آنے لگا، ٹرائی چالو ہے، اس کو دیتا 40,000، وہ لیتا 30,000، ہم کو 25 سے ملتا تو اچھا ہوتا۔ جو 25,000 لے رہا ہے وہ سوچ رہا ہے 50,000 ملتا تو اچھا ہوتا، جو 50 لے رہا ہے وہ سوچ رہا ہے 1 لاکھ میں 1 لاکھ ملتا تو اچھا ہوتا۔ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں کیا ہوں؟ سرکار فرماتے ہیں انسانوں کو 3 جنگلوں کے برابر اگر
कुर्सी में हाजिर। सुभान अल्लाह जोर से बोले सुभान अल्लाह। इल्म की प्यास कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। अब बड़े बड़े मुफ्तियान किराम बैठे, आलिम पूछ लीजिए, मुफ्ती साहब हो गए, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, लेकिन जब किताबें मुताले में रखते हैं, पढ़ते पढ़ते जब कोई नई बात आती है, ओहो, महसूस होता है हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आगे बढ़ते हैं, यानी बढ़ते रहते हैं, तशरगी बढ़ती रहती है। और जो आलिम इस दिन समझ लेता है मैं आलिम हो गया, उसी दिन चौपट, जिंदगी भर पढ़े, इल्म बढ़ता रहेगा, इल्म बढ़ता रहेगा। जो हाफिज ये समझ ले मैं तरावी सुना लिया हूं, पक्का हाफिज, सारा नहीं पढ़ूंगा, गया गया। रमजान जब आएगा तब उसकी हालत देखिए, कितनी चटाई को तोड़ देगा, सुबह से शाम तक परेशान रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। क्यों? आज उसको तरावी सुनाना है, याद नहीं है, उसके बाद स्टार्ट करेगा, इतना झूमेगा, इतना झूमेगा, तरावी सुनाने कहेगा, अंदर अंदर कांपता रहेगा, बाप रे बाप, अगर कहीं कुछ हुआ तो क्या होगा, कहीं कुछ हुआ तो क्या होगा। मैंने नफ्सी नफ्सी के आलम में रहता है। क्यों? इसलिए कि समझ नहीं आता, बहुत याद है, काफिर हो गया था, कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, कुरान रोजाना पढ़ने वाली किताब है। काश रोजाना एक पारा ही पढ़ लिया होगा तो आज पसीना नहीं आता, पढ़ता रहता और लुत्फ मिलता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इल्म की प्यास कभी नहीं बुझती है। सारा मजमा जरा हमारे हाथों को लहराए बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कभी भी दुआ मांगा कीजिए, वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से उसका फजल मांगिए। लेकिन आप लोग हैं, हम लोग हैं, अक्सर लोग लालची हैं, क्या क्या मांगते हैं, या अल्लाह फटफटिया दे दे, या अल्लाह मोटरसाइकिल दे दे, या अल्लाह 4 चक्का दे दे, या अल्लाह 6 चक्का दे दे, या अल्लाह दिल्ली में मकान हो, मुंबई में मकान हो। कुछ लोग तो ये भी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह एक ट्रेन ही मेरे मिल जाए, या अल्लाह एक फ्लाइट मिल जाए, उसी का भाड़ा खाता रहूं, मजा उड़ाता रहूं, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह पूरे गांव के लोग मर जाए, जमीन मेरी हो जाए, या अल्लाह मेरा पड़ोसी मर जाए, उसका कब्जा मेरा हो जाए। यानी इस तरह बोलता नहीं, लेकिन अंदर में समझ गया, झगड़ा होता है, यही दुआ होती है, या अल्लाह रास्ते में रह जाए, या अल्लाह मर जाए, यही सब दुआ करते। या अल्लाह मेरे बेटे को नौकरी हो, या अल्लाह मेरे बेटे का करोड़पति का रिश्ता लगे, या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह वो जाए। जिंदगी भर दुआ मांगते मांगते मर जाइएगा, फिर भी दुआ भूल जाइएगा। दुआ की बात से अलग हो, ये चीज तो मैं मांगा ही नहीं, ये चीज तो मैंने मांगा ही नहीं। इंसान लालची है, मांगता जाएगा, मांगता जाएगा, मांगता जाएगा। लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, तुम अल्लाह से उसका फजल मांगो। ये स्पेलिंग करके दुआ क्यों मांगते हैं? एक ही दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। सुभान अल्लाह। आप लोग आंख मार के देखते रहे, हश्र में मुलाकात होगी, पूछूंगा क्या हाल है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे अपना फजल दे दे। ये दुआ मत मांगिए, ये दे दे वो दे दे, या अल्लाह अपना फजल दे दे, या अल्लाह अपना फजल दे दे। चूंकि फजल खुदा का ही कमाल है, जिसे चाहा नवाज दिया, जिसे चाहा माला माल कर दिया, ये खुदा का फजल है। ये दुआ मत मांगिए ये दे दे, बस अल्लाह का फजल मांगिए। सारा उरूज फजल खुदा में है, सारा कमाल फजल खुदा में है, सारा जमाल फजल खुदा में है। तो जब फजल ही मांगिएगा तो जमाल भी मिलेगा, कमाल भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, और रब की रज़ा भी इंशाअल्लाह जहां भी मिलेगी वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब हिज्जे मत क्या कीजिए, फजले खुदा का जानते हैं रिजल्ट क्या होगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। तो हजरात, मेरे पास भी अशार है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, हमद भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ। जी हाँ, वक्त आ जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं पढ़ूंगा। आप लोग बिल्कुल हावे में मत समझिएगा, एक से एक अशार है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग दुआ कर रहे हैं निसार का इंतकाल हो, शायर आ जाए। इंतकाल में से मरना नहीं, यहाँ से चला जाए, मेरा वक्त होगा चला जाऊंगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाइए,
कसम खुदा की, जब आपकी बेटी आलिमा हो, हदीस पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, उसे आयतुल कुर्सी भी याद है, उसे कुरान की कई सूरतें याद होंगी, उसे मालूम होगा कि औरत का बाल छुपाना कितना जरूरी है, उसे मालूम होगा कि पायल कैसा पहनना जायज है, उसे मालूम होगा हुस्न में निखार कब पैदा करे, अपने हुस्न की नुमाइश करना कैसा है। जब वो इल्म वाली होगी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बच्चियों को क्या मालूम, उन बच्चियों को मालूम है जिसने इल्म कुरान हासिल किया, इल्म हदीस याद किया है, उन औरतों को मालूम होगा कि एक औरत ने अगर अपने आप को सजाया गैर मर्दों को देखने की नीयत से, उसका अज़ाब कितना भयानक होगा। लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि जब माँ सालिहा होगी तो इंशाअल्लाह बच्चे को उसके नेकी का सदका जरूर मिलेगा। हाफिज अख्तर साहब हो, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला खुलूस हो, अल्लाह इनको कामयाब करे। आप लोग इसमें शामिल रहे, आप लोग भी इसमें शामिल रहे और एक नीयत लेके जाए, पढ़ेंगे नहीं आप आगे बढ़ेंगे नहीं, इल्म है वहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। आपके पास इल्म नहीं है, आपका वजू ठीक नहीं, आपके पास इल्म नहीं है, आपका गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, गए तालाब में घुस करके डुबकी लगा लिया, पाक हो गए, लैब में साबुन या जलसन साबुन लगा के कोई आदमी पाक होता है, कहते हम नहा लिए। पाकी हासिल करने के लिए भी इल्म का होना जरूरी है। नमाज कैसे पढ़ेंगे कि मुकम्मल होगी, इल्म यानी बंदगी के लिए भी इल्म जरूरी है और जिंदगी के लिए भी इल्म जरूरी है। जो कौम कलाम के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, आज उसे सिलूट मार रहे हैं, क्यों? उसके पास इल्म है। हजरात, ये मौलवी की तकरीर ही मत समझिएगा, डायलॉग मत समझिएगा, ये हकीकत है। तालीम में पीछे, आप सबसे पीछे, और ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हर आदमी एहसास करे मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े। इज्तिमाई तौर पर दावत जरूर दी जा रही है, लेकिन हर आदमी सोचे और अपनी बच्चियों को आलिमा बनाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए। आज अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है कि जनाजा में क्या पढ़ा जाएगा। अगर खड़ा खड़ा के सवाल कर दे तो कितने लोग फेलियर हो जाएगा, क्यों? तालीम नहीं। और जिस आलिम को आप समझते औने पौने हैं, इन उलमा का एहसान है कि 8,000 10,000 में भी इतनी हार्ड ड्यूटी देते हैं कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद हो गई, सब लोग घर में खर्राटा लेते रहे, लेकिन मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी कब कब। मैं दोस्तों आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा, ये सारा कमाल खुदा के फजल का है, और खुदा का फजल है महबूब फरमा दीजिए, फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे, वो जिसे चाहे नवाज दे। हमें मांगने का ढंग नहीं मालूम है, अल्लाह से उसका फजल मांगे। हजरात, जिसपे खुदा का फजल होगा वही जन्नत का हकदार होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा उसे हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही पुलसिरात को आसानी से पार करेगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही जन्नत में जाएगा। इसलिए सारा कमाल खुदा के फजल का है। हम कुछ न मांगे रब से, जब मांगे अल्लाह का फजल, और जब अल्लाह का फजल किसको होता है, यूती है मन यशा, वो जिसे चाहे नवाज दे, तो जिसे चाहा नवाजा फिर हमें हसद क्यों, जिसे चाहा नवाजा हमें जलन क्यों, जिसे चाहा आकर दिया हमें परेशानी क्यों, जिसे चाहे शोहरत दिया हमें प्रॉब्लम क्यों, दौलत वालों को गुरूर क्यों, मगर दौलत वालों को घमंड क्यों। अगर अल्लाह ने खुशहाल बनाया है तो शाकिर बन जाइए, गरीब बनाया है साबिर बन जाइए। साबिर भी कामयाब होगा, शाकिर भी कामयाब होगा। दौलतमंद बनने के बाद अगर शुक्र अदा न किया आप पिछड़ जाएंगे, और अगर गरीब है मुसीबतों का सामना है
सब्र न किया परेशान रहेंगे, सब्र करेंगे यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। मेरी गुफ्तगू मेरा टॉपिक जो था बिल्कुल आसान था, खुश्क था, इसमें जोश नहीं था, वलवला नहीं था, आपको गर्म करने का इसमें मादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर है फिक्र में अगर आपकी ये बात बैठ गई और अल्लाह का फजल हो गया तो इंशाअल्लाह आपकी इल्म में इजाफा होगा और गुनाहों से बचते नजर आएंगे और कभी न गुरूर होगा न कभी हसद आपके अंदर होगा। बस किसी को देखिएगा जैसे कोई शायर पढ़ रहा है, दूसरे शायर देखेगा इस पे खुदा का फजल होगा, जब ये तो मकबूल हो गया वो भी बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी बोलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये सारा कमाल अल्लाह के फजल का। ये शोरा हजरात जो पढ़ते हैं बिल्कुल सैंपल माइक में पढ़ते हैं, इतनी आवाज को लहराते हैं, लेकिन गायकार जो होते हैं बाप रे बाप, इतना इंतजाम उन लोगों का होता है, इतना इंतजाम, तब जाकर के बहुत सारे इंतजामात के बाद आवाज को निकालते हैं। ये लोग बगैर इंतजाम के खड़े होते हैं और बिस्मिल्लाह शुरू हो जाते हैं। जानते हैं ये क्या है? इसको कहते हैं खुदा का फजल, वरना कहा ऐसे आवाज वाले बहुत है। मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास करूंगा, मेरी आवाज समझ में आ गई है तो अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हसद करने वाला बर्बाद था, बर्बाद है, बर्बाद रहेगा, और मुसलमान भाइयों की तरक्की को देख खुश रहने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, हमेशा इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है तो रब की बारगाह में झुक जाना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। आइए हम और आप सब मिल करके तौबा इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा इससे जोर से नहीं ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।